fellow teachers, dear students and viewers. It is my 5th lecture. Actually, this content was prepared by me last year for professional development of English teachers. However, this lecture is useful for all kind of teachers, PRTs, TGTs and PGTs English, and students of 11th and 12th. Our today's topic is phonetic transcription. Need. What is the need to learn new phonetic transcription? Hello viewers, do you know how many sounds are used by the English speakers? In fact, the English speakers use 44 sounds in total. Out of these 44 sounds, 24 sounds are consonant sounds and 20 sounds are vowel sounds. And out of the 20 vowel sounds, 12 sounds are pure vowel sounds and 8 are diphthongs, means double vowel sounds. It is almost impossible to represent 44 sounds with only 26 letters of alphabet. Therefore, International Phonetic Alphabet means IPA is used to transcribe words. This is the foremost reason we need additional phonetic transcription in English. However, some other concrete reasons are given in the next slides. There is no one-to-one correspondence between the letters of the alphabet and the sound they represent. Sanskrit and Hindi are almost perfect in this context. English is an unscientific, illogical and irrational language. The famous English poet George Bernard Shaw once remarked, English orthography means writing system permits गोटी फॉर फिश. इसका क्या तात्पर्य है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये प्रूव करने के लिए कि इंग्लिश अनसाइंटिफिक लैंग्वेज है, ये एग्जाम्पल दिया था कि हम फिश को GHOTI से भी लिख सकते हैं और ये प्रूव करके दिखाया था. GH एज इन कफ represents fa sound. O as in women represents I sound, and TI as in motion represents SH sound. In English, one letter or group of letters stands for more than one sound, as एक लेटर कई तरह की साउंड्स देता है. जैसे एग्जाम्पल्स दिए हैं, G in give and in gin gives different sounds. C in scale and in seas gives different sounds. TH combination in this and in thin gives different sounds. CH in chin, in machine and in character gives different sounds. GH in ghost and in cuff gives different sounds. ये कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आप डेली लाइफ में देखते होंगे. तीसरी बात, द सेम साउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट लेटर्स. ऐसा ही नहीं है कि लेटर्स डिफरेंट साउंड रिप्रेजेंट करते हैं, इसका उलट भी है इंग्लिश में. द सेम साउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट लेटर्स.
ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। फ साउंड बाई एफ इन फन, फन में फ साउंड एफ से बनती है। बाई डबल एफ इन कॉफी, बाई पी एच इन फिजिक्स, बाई जी एच इन कफ। ये सभी लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स फ साउंड दे रहे हैं चारों। इसी तरह के का एग्जाम्पल है क साउंड बाई के इन की, बाई सी इन कार्ट, बाई क्यू इन क्यू एंड बाई सी एच इन स्कूल। ये डिफरेंट लेटर्स क साउंड प्रोड्यूस करते हैं। There are many silent letter rules in English without any proper logic. These silent letters also confuse the speakers. These rules we shall learn in the next lecture. Hence it is obvious that in English language there is no consistency in putting down in writing what exactly one says. यानी लिखने और बोलने में बहुत डिफरेंस है इंग्लिश में। Therefore, in English we need phonetic transcription to represent individual sounds. तो सभी 44 साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से सिंबल्स की जरूरत पड़ती है इंग्लिश में। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंग्लिश में प्योर वोवल साउंड्स 12 हैं, 12 प्योर वोवल साउंड्स हैं और ये उनके सिंबल दिए गए। ये 4 फ्रंट वोवल होते हैं। आप वर्ड्स में वोवल साउंड को नोटिस करें, ये लॉन्ग ई साउंड है, आई के साथ 2 डॉट लगे हुए हैं, डॉट लगने से साउंड लॉन्ग हो जाती है। ई एज इन सी, और ये विदाउट डॉट आई है, ये शॉर्ट ई साउंड है, एज इन सिट। और ये साउंड ए है, एज इन 10। और ये लॉन्ग ए है, एज इन हैट। आप ये सिंबल सीखिए और इससे कोरिलेट करिए इन वर्ड से। सी और सिट में वोवल साउंड का डिफरेंस नोटिस करिए। 10 और हैट में वोवल साउंड का डिफरेंस नोटिस करिए। ये 4 फ्रंट वोवल साउंड होती है इंग्लिश में। 5 बैक वोवल साउंड्स हैं। ये ए के साथ 2 डॉट लगी है, लॉन्ग साउंड हो जाएगी, आ एज इन आर्म। ए और आर मिलकर के लॉन्ग साउंड कर देते हैं आर्म। ये शॉर्ट ओ साउंड है, एज इन कॉट। ये लॉन्ग ओ साउंड है, एज इन सॉ। शॉर्ट ऊ साउंड है, एज इन पुट। और ये लॉन्ग ऊ साउंड है, एज इन फूड। आप इन वर्ड्स की वोवल साउंड को जरा दोबारा नोटिस करिए। आर्म, कॉट, सॉ, पुट, फूड। ये लॉन्ग और शॉर्ट का डिफरेंस आप समझ जाएंगे। 3 आर सेंट्रल वोवल्स। असल में तीनों ही अ साउंड है इंग्लिश में। ये शॉर्ट अ साउंड है, एज इन कप। ये लॉन्ग अ साउंड है, एज इन अर्न। और ये इनके बीच की साउंड है, एज इन अगो। अगो। इंग्लिश में अ साउंड 3 होते हैं। 8 डिफ्थोंग्स होते हैं इंग्लिश में। डिफ्थोंग का मीनिंग है डबल वोवल्स। 2 वोवल साउंड साथ साथ आ जाए उनको डिफ्थोंग बोलते हैं। आप वर्ड्स को ध्यान से देखिए। ये एम, अय साउंड है, एम एज इन एम। आई एज इन आइस। ओई एज इन ऑयल, ऑयल।
औ एज इन गौ, आओ एज इन नाव। ये अभी 5 ही आए हैं, 3 अगली स्लाइड में हैं। ईय एज इन नियो, एय एज इन एय, और ये ऊ एज इन पुअ। इस प्रकार टोटल 20 वोवल साउंड्स हो गई। 12 + 8, 12 मोनोफ्थोंग्स एंड 8 डिफ्थोंग्स। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स देख लीजिए। काफी साउंड्स तो जैसा लेटर है वैसी ही है, लेकिन कुछ आपको ये नहीं लगेंगी, उनको जरा ध्यान से देखिए। वर्ड्स के एग्जाम्पल से क्लियर होगी साउंड। सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स टोटल 24 मैंने बताए थे। इनमें से 9 वॉइसलेस होते हैं और 15 वॉइस्ड होते हैं। ये कभी नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करेंगे क्या मतलब है वॉइसलेस और वॉइस्ड का। फिलहाल आप ये सिंबल सीख लीजिए। प एज इन पेन, ट एज इन 10, क एज इन काइट, च एज इन चेन, फ एज इन फैन, स एज इन थिन। और दूसरी साइड वॉइस्ड है। ब एज इन बैट, ड एज इन डॉग, ग एज इन गोट, ज एज इन जग, व एज इन वैन, और द एज इन दिस। आगे कंटिन्यू रहेंगी। स एज इन शी, श एज इन शिप, ह एज इन हैट। और दूसरी साइड ज एज इन जू, ज एज इन विजन, म एज इन मैन, न एज इन नेस्ट, र एज इन रैट, य एज इन यस, व एज इन वेट, अंग एज इन सॉन्ग, और लास्ट है ल एज इन लेग। इस प्रकार 9 साउंड्स इधर हैं और 15 इधर हैं। ये टोटल 24। तो दोनों का टोटल करें तो 44 बन जाएंगे। 20 वोवल साउंड्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड। अच्छा, अब तो हम प्रोनाउंसिएशन गूगल पे सर्च कर सकते हैं किसी भी डिफिकल्ट वर्ड की, लेकिन कई साल पहले गूगल अवेलेबल नहीं था आम आदमी को, तो ये बहुत हेल्पफुल होते थे सिंबल्स डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन पढ़ने के लिए। और ये ALD एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की है बाय A.S. हॉर्नबी, उससे लिए गए सिंबल हैं। डिफरेंट डिक्शनरीज में डिफरेंट सिंबल्स दिए गए, तो मैं इसी को रिकमेंड करता हूं। उम्मीद है आपको अब सभी साउंड्स का अच्छे से पता चल गया होगा, या जिन्होंने पहले पढ़ रखा था उनको ये रिवाइज हो गए होंगे। तो इससे आपको टीचर्स को बहुत हेल्प मिलेगी प्रोनाउंसिएशन ठीक करने में। आज का लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।